Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and we believe so that you are having a good time in the mean of education and you are utilizing this time for your betterment and for the betterment of the others. In our last video we talked about the chapter whose name was Science and the Scientist, and in which we told that how science, scientific approach, scientific methodology works and how science is progressing there in this world. We also talked about that how unscientific work is going to be distinguished from the scientific work, and we were having examples in it. मिसालें दी थी हमने आपको समझाने के लिए, और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर से मोस्टली वी आर गोइंग टू हैव जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, one or two. Usually we are not going to have anything else from it. Okay, so now after it we are having next chapter, and that is with the name of Science and Society. Now today we have tried to do things differently. In previous we were having laptop and the slides were moving, the video was moving, and that's all. Today we have pasted all the lecture there on the 4 pages, and with the help of these pages we will try to explain all the basic things which are discussed and described in our chapter, that is with the name of Science and Society. So let's start it, and for it, first of all you need to understand the title, Science and Society. Now what is science and what is society? They both are working together. Science, you know, in last chapter we told you about it. Society, you know it very well because you are the part of the society, you are living in this world. In this chapter we will tell you that how science is impacting on the society and how science is working for the betterment of society and for the betterment of the human beings. In this chapter we will also discuss that how these two things, science and society, are relating to each other for the development of human beings in this modern world. So without wasting the time, we will start and we will focus on the things which are described here. So we will start from the very first page, and it is telling you about that the first, Science and the Scientist. Now, since the beginning of the 17th century, science progressed a lot. Now, before the beginning of the 17th century, 16th, 15th century, science was not having such an approach there, that things were entirely different. Like we were having scientists like Copernicus, we were having scientists like Galileo. अब 17वीं सदी से जो है ना, साइंस ने तरक्की करना शुरू की और साइंस के अंदर एक जिद्दत आई. उससे पहले जो साइंस में काम हो रहा था, उसके अंदर काम तो हो रहा था लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो थी. लाइक हमारे पास साइंस की तरक्की को या साइंस को मानने वाले लोग बहुत कम थे और उनके ऊपर एतराज़ात ज़्यादा होते थे. लाइक कॉपरनिकसन जिंदा जला दिया गया उनको. गैलीलियो उनके साइंटिफिक बिलीव्स की वजह से उनको सारी उम्र के लिए जेल में रहना पड़ा. इसी तरह से हमारे पास अबू अली सीना या और बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे पास मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस की कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत काम किया. लेकिन विद द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, साइंस progressed a lot and science worked differently. In the 17th century, तीन फीचर थे जो कि हमारे पास सामने आए, और उन तीनों ने आकर साइंस को बिल्कुल एक नया पेस, एक नई स्पीड, एक नई रेशो दी, जिससे चीजें तब्दील होना शुरू हो गई. अब वो 3 फीचर्स कौन कौन से थे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, उसमें पूछते हैं व्हाट वर द 3 फीचर्स which give a proper pace to the science. Number 1, scientific attitude of mind. Scientific attitude of mind क्या होता है? That you need to have
proper scientific mind that you need to work systematically. Like as we told you, you need to have scientific methodology when you are working over there. You need to go with pure reason. Pure reason means totally you need to have intellectual approach. You need to have rational approach. You need not to give any weightage to your emotions while you are working with the science. और साइंस में काम करते वक्त किसी भी चीज को साबित करने के लिए बातों से चीजें साबित नहीं की जाती है। बातों से हमें कोई मीनार नहीं बनाने हैं हवा के अंदर। हमें जिस चीज पर बात करनी है उस चीज का हमें फिजिकल एविडेंस देना है। चीज को देखकर, उसको ऑब्जर्व करके, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, वी नीड टू प्रूव इट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्योर रीजन। आफ्टर इट सेकेंड चीज जो हमारे पास डेवलप होती है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन को, किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस को मेजर करने के लिए अगर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो हम किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिफिक प्रोसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो चीज अहम होती है वो होता है इंस्ट्रूमेंट्स। और 17th सेंचुरी में इंस्ट्रूमेंट्स बहुत जदीद हो गए थे। एंड थर्ड थिंग वी वर हैविंग ओवर देयर दैट वाज द इफेक्टिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का प्रॉपर यूजेज। दुनिया के अंदर दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कमाल के हैं। वन इज ह्यूमैनिटीज एंड सेकंड वन इज मैथमेटिक्स। जिसने इनको सीख लिया, बिलीव मी, दे आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड ओवर देयर। इस पर हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की मिसाल है मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी, शी वॉज पुअर एंड शी वॉज नॉट हैविंग इवन दो इनफ क्लॉथ्स एंड फूड एट द टाइम ऑफ विंटर। सर्दियां होती थी तो सर्दियों में वो सिर्फ अपने कपड़े जो होते थे उनको ओढ़कर और उन्हीं को अपने ऊपर लेकर सोती थी। लेकिन 20 साल की उम्र तक उन्होंने घरों में जाकर ट्यूशन्स पढ़ाई और अपने ऊपर डेवलपमेंट की। तो एक वक्त आता है, यही मादाम क्यूरी जो कि गुर्बत और मुफलिसी में रही थी, साइंस के अंदर रेडियम, यूरेनियम जो कि हमारे पास यूज होता है कैंसर के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, इनकी ये डिस्कवरी है। तो मादाम क्यूरी ने इस दौर में हमारे पास साइंस के अंदर प्रोग्रेस की। तो साइंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे माशरे के अंदर चीजों के होने या ना होने में। अब हु यूज्ड दीज थ्री थिंग्स प्रॉपरली? दैट वाज द मैन विद द नेम ऑफ न्यूटन इन द 17th सेंचुरी। न्यूटन्स के लॉज ऑफ इमोशंस आपको पता है। न्यूटन वो वाइज शख्स थे जिन्होंने इन सारी की सारी चीजों को उस वक्त यूज किया था। न्यूटन्स की जो थीरीज थी वो थीरीज ग्रेविटी और लाइट में एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी उस दौर के अंदर। हमारा जैसा कोई इंसान होता तो दरख्त के नीचे बैठा होता, सेब उसके सर पे गिरता, कुछ नहीं होता। लेकिन इस शख्स ने, क्योंकि ये आम नहीं थे, खास थे, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो इनकी इन रेवोल्यूशनरी थीरीज ने चीजों को चेंज करना शुरू किया 17th सेंचुरी में। उसके बाद इनका इंडिपेंडेंट ऑफ साइंटिफिक, इनका जो था इंडिपेंडेंट यूज ऑफ नॉन साइंटिफिक बिलीव्स। अब देखिए साइंटिफिक बिलीव्स एंड नॉन साइंटिफिक बिलीव्स क्या होते हैं। इन साइंटिफिक बिलीव्स you need to work on the things with a systematical order. Before 17th century there were non-scientific beliefs. Non-scientific beliefs means जिन पर आपका यकीन माने, आप उस चीज का एविडेंस आपके पास हो ना हो, आपका मजहब आपसे कहता है, आपका दिल आपसे कहता है, आप उस पर यकीन कर लेते हैं और आप उसको मानते हैं और आगे फैलाते हैं। इन्होंने इससे हटकर काम किया। इन्होंने प्योर रीजन और रैशनलिज्म को फरोग दिया कि जो बात अकल मानेगी, जो चीज प्रूव हो सकती है, उसको ही हम मानेंगे, उसके अलावा काम नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स जो उनके दौर में थे, टेलीस्कोप और प्रिज्म, इसका इन्होंने प्रॉपर यूज किया। और मैथमेटिक्स, जिसकी बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ इट, न्यूटन वाज द मैन who worked a lot for the progress of science in the 17th century. When we will move ahead, now we are going to find out that how science is working.
let us have an example of it. We said that two scientists, they are working on the same experiment. While they are working on the same experiment, तो अब जब वो सेम एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए या मुख्तलिफ? ऑब्वियसली सेम आएगा. क्यों? दे नीड टू फॉलो द 3 फीचर्स which gave too much to the science in the 17th century. साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड उनके पास होगा, प्रॉपर यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होगा और साथ में मैथमेटिक्स होगा. अब वो किसी भी मजहब, किसी भी जात, किसी भी पात, किसी भी क्रीड से ताल्लुक रखते हो, when they are working together on the same experiment, they are going to have the same result. हाँ, ऐसा हो सकता है मेजरमेंट के दौरान, इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट के दौरान कि ह्यूमन एरर आ जाए तो कोई गलती हो सकती है. Other than they are going to have the same result. And now in the modern world, when we are going to discover or when some publication of any discovery is going to be published in any side of the world, बहुत आसान है. आज मगरिब में कोई चीज होती है तो मशरिक में आराम से हमारे पास आ जाती है. ये साइंस का कमाल है हमारे पास आज के दौर में. अब साइंस ने जितनी तरक्की की है, साइंस हैज वर्कड अलॉट. साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन साइंस कहां पर नाकाम होती है? इंसानों ने साइंस का सहारा लेते हुए बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, लेकिन साइंस इज कंप्लीटली फेलेबल टू सॉल्व पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज द इशू. Now, the thing is that, the question is that, can science be able to solve all these political and social issues? Can science have something like this, that science is going to give us something really productive, that it can resolve the issues of the modern age man? So, what is science contribution towards it? Science ने क्या किया हमारे लिए आज तक? Science contribution in the modern age is remarkable one. Science is giving us comfort. साइंस हमें तसल्ली देती है, साइंस हमें सुकून देती है. अगर आज कोई 10,000 साल पहले का इंसान आज के दौर में आके रहे और देखे कि इंसान किस तरह से रह रहा है, आप हैरान रह जाएंगे. साइंस हमें पॉवर्टी से लड़ना सिखाती है. साइंस इज वर्किंग अस टू वर्क ऑन ह्यूमन इकोनॉमी. साइंस इज वर्किंग अस दैट हाउ टू रिजॉल्व सोशल evils and the illness which are there in the society. That is the work of the science. But what about social and political evils? Social and political evils से क्या मराद है? Social evils वो बुराइयां जो माशरे में हमारे पास फैली हुई हैं, चोरी, नशा. Political evils, on the behalf of politics, we are destroying the interest of other countries. We are attacking them. इशू ये है, सवाल ये है, are we able to resolve these social and political evils on the behalf of the science? Can science work here? No. Science can't do anything here. These things can be resolved. These social and political evils can be resolved only and only on the behalf of one thing, when we are going to have unprejudiced objectivity. Now, what is unprejudiced objectivity? Unprejudiced means without any discrimination, when we are going to resolve, बगैर किसी जात पात के, नस्ल और मजहब के फर्क के बगैर जब हम माशरे के मसाइल पे बात करना शुरू करेंगे ना. देखिए, अब माशरे का मसला क्या है? माशरे का मसला ये है कि हमारे यहाँ पे इंसाफ नहीं है. अब मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ मुसलमान हूँ, तो मैं इंसाफ मुसलमानों को दूंगा, हिंदुओं को इंसाफ मुझे नहीं देना है. तो ये अब प्रिजुडाइज्ड अप्रोच है. विद दैट प्रिजुडाइज्ड अप्रोच I cannot resolve that social evil. Same is going to be the political evil. And with unprejudiced objectivity. Objectivity means no personal affiliation by resolving any issue. किसी भी मसले को हल करते वक्त अपनी जाती राय, जाती सोच, जाती डिसीजन को अलग रखना होता है. On the behalf of it, we can resolve the issues as a human being. Science cannot resolve all these things there. Science is having its limitation. साइंस की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं.
How? Science can work there where we need to observe something, when we need to measure something, when we need to work on mathematical grounds, where science is having laws there. Science has nothing to do with the values. All the human values we are having, science cannot resolve it. Like truth, beauty, love. अब साइंस कैसे मेजर करेगी लव को और कैसे हल करेगी लव के इस मसले को? साइंस फ्रेंडशिप के मसले को हल नहीं कर सकती, साइंस गुडनेस के मसले को हल नहीं कर सकती. साइंस कैन नॉट रिजॉल्व द मैटर ऑफ करेज. हाउ साइंस इज गोइंग टू पुट बॉर्नविटा इन यू एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू करेज ओवर देयर? इट्स इम्पॉसिबल. ऐसा दौर नहीं है कि आप स्टिंग पियो और क्या कहते हैं और आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आप जो है क्या कहते हैं मसलों को रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे. नहीं, साइंस कैन नॉट डू एनीथिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट जस्टिस. साइंस कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट अल्ट्रिज्म. अल्ट्रिज्म मीन्स अनसेल्फिशनेस. अब इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कौन कर सकता है? साइंस नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ इंसान ही कर सकता है. दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द ह्यूमन्स ऑनेस्टी ओनली. व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर ऑनेस्ट, they are not unprejudiced, they are not having objectivity there, then they can easily resolve the things there on the behalf of their honesty and on the behalf of their intelligence. Other than, it's going to be very difficult for them to resolve all these social evils. मोहब्बत कमाल की चीज़ है, लेकिन ये माशरे के अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इवल भी क्रिएट करती है जब हम प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं, जब हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी आ जाती है. फैमिली कमाल है, बेहतरीन है, दोस्ती सबसे बेहतरीन रिश्ता है हर रिश्ते के अंदर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इवल बन जाता है जब हम इसको प्रॉपर वे में जाके यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. तो साइंस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है. यहाँ पर साइंस और सोसाइटी का जो रिलेशन हम देख रहे हैं ना, हियर science cannot do anything for the betterment of society unless the habitant of the society, the people who are living in the society, they will not do all these things on the behalf of honesty and on the behalf of their own intellectual imaginative concerns. जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है नाकामी की, वही है कि ह्यूमन्स लव फॉर मटेरियल थिंग्स. इंसान जो है ना वो मटेरियलिस्टिक हो. इंसान को चाहिए मटेरियलिस्टिक कंसर्न्स. सिर्फ अपने जिस्म की खुराक को पूरा करना है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ऑल दीज थिंग्स दे नीड. एंड इट इज द ट्रेजिक फेलियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स दैट दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन ऑल दीज गुड थिंग्स विच आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. यही वजह है कि आज हमारे माशरा जो है वो एक हारमोनियस वर्ल्ड सोसाइटी नहीं है. यहाँ पे अफरा तफरी है. Here we are having anarchy. Here we are having social injustice. Here we are having hate. Here we are having greed. Here we are having lust. All these things when are going to be in this society, and we are going to have all these things in just to work for ourselves. It is impossible to have growth over there in the mean of the world. वो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ये. और जब हम साइंसदानों की बात करते हैं, साइंसदान अपना सब कुछ दे देते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूटन्स कंट्रीब्यूशन, वी टॉक अबाउट एडिसन्स कंट्रीब्यूशन, आइंस्टाइन्स कंट्रीब्यूशन, स्टीफन हॉकिंस कंट्रीब्यूशन, दे वर्कड आउट. हमें सोशल साइंटिस्ट भी चाहिए जो कि सोसाइटी को ठीक कर सकें. अनटिल अनलेस ये सोशल साइंटिस्ट जो टीचर्स होते हैं वो अपना काम बेटर वे में नहीं करेंगे तो माशरे के अंदर सुधार नहीं आएगा. हम साइंस को अकेले ब्लेम नहीं कर सकते. साइंस और बाकी चीज़ों के साथ मिलके हाउ कैन वी चेंज द थिंग्स देयर, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग देयर. अब उस पर हम बात कर लेते हैं. दैट इज द कंक्लूडिंग थिंग ओवर देयर. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग ओवर देयर. और ये क्या है? यंग पीपल मस्ट बी एजुकेटेड इन मॉडर्न साइंस. आप लोग, आप यंग हो, आप हमारी नेशन का फ्यूचर हो. You are everything for us. So we need to educate you in modern science. Why?
आज के दौर के हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। अगर आज के दौर के हिसाब से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, बिलीव मी, आप आज के दौर के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू बी द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वी नीड टू एजुकेट यू अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, अदर देन आप पीछे रह जाएंगे इस दुनिया के अंदर। और मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्निक्स में ज़रूरी है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड होना, प्रॉपर यूजेज ऑफ मॉडर्न साइंस की ब्रांचेस का। विदाउट इट इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। अब एजुकेट तो हो गए हम, पढ़ लिख तो गए हम, अब हमारे अंदर इखलाकियात कहाँ से आएगी? देखिए ना, हमने देखा आजकल के माशरे के अंदर, वी ऑल आर एजुकेटेड बट वी लेक मैनर्स। मैनर्स सोसाइटी से आते हैं, मैनर्स माशरा देता है। साइंस और माशरा एक साथ मिलके इंसान के लिए काम, इंसान को बेहतर बनाते हैं। अब टू बी अ गुड सिटीजन, अब एक इंसान को अच्छा शहरी बनने के लिए दुनिया का क्या करना पड़ेगा? द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू हियर इज दैट we need to work on intellectually and imaginative awareness of the human values। इंसानी वैल्यूज जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। इंटेलेक्चुअली इंसान की विजडम को हमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करना होगा। वी नीड टू गिव एन आई ऑफ इमेजिनेशन टू द यंग पीपल। We need to ask them to have an eye where they can have their own fantasy, to think about things in a different dimensions। हमें उनको इंसानी कदरें सिखानी होंगी, हमें उनको इंसानी बिलीव्स, एतकाद, यकीन के बारे में बताना होगा। देखिए, यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान के अंदर। एंड इफ यू हैव बिलीव, believe me, you have a belief and believe that you can change the whole world, because it is only the power of belief which is going to change you entirely, and it is the foundation in each and everything there। जिंदगी के अंदर तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आप इस काबिल नहीं है कि आप जान जाएं आप क्या हैं। इस पर एक बड़ा कमाल का एक वाकया है, वाकया बड़ा जबरदस्त है। एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन खराब हो गई। Now the machine was not able to work over there, so all the workers were sitting over there। तो फैक्ट्री के मालिक ने एक वर्कर को, एक शख्स को बुलाया मुल्क से बाहर से वो आता है, आके पूरी उस मशीन को एग्जामाइन करता है। एग्जामाइन करने के बाद he was having just one hammer in his hand and he hit that hammer on the machine and machine started to work। तो जिस शख्स ने उसे बुलाया था उसने बोला, आपने ये क्या किया? बोला, देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी जो तालीम थी, मेरा जो सेल्फ बिलीफ था, उसने मुझे ये सिखाया था कि किसी भी काम को ठीक करने से पहले उस काम को अच्छी तरह से देखो, देखने के अंदर ही मसला हल हो जाता है। तो मैंने वही काम किया। तो हमारे अंदर अपने अंदर की क्वालिटीज को जानना है। वी नीड टू नो इट। सो टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी नीड टू हैव intellectual and imaginative concerns, and with the help of it we will be able to change the things there। now अब कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर साइंस और सोसाइटी किस तरह से वर्क कर सकती है, दुनिया के अंदर इंसान बेहतर कैसे हो सकता है और बेहतरीन कैसे हो सकता है। हमें तीन चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। वन इज रिलीजन, जिसका जो भी मजहब है, जिसका जो भी यकीन है, उसको उसके साथ रहने दो, खुश रहे वो उसमें, उसको करने दो, उसको फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजन की। ह्यूमैनिटीज आर एकेडमिक डिसिप्लिन्स वेयर वी आर हैविंग फिलॉसफी, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट सोशल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये दोनों इतने ही अहम हैं जितनी अहम हमारे पास साइंस है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर हम सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द गुड मेंबर्स एंड द गुड सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड। एंड विदाउट इट इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू वर्क इन अ प्रॉपर वे। सो दैट इज द कंप्लीट explanation
of that chapter, that is with the name of Science and the Society. इसमें बात क्या हो रही है? First of all, they are letting you know that how science changed, what were the three features who worked there for the contribution of the human society. Then they are letting us know that why science is not able to change, why science is not able to cure the social evils of the society. And then they are letting you know that how together they can change the things there. So understand the things, read it, go through the text, believe in it, you can easily understand the whole chapter there. अब इसके बावजूद भी इसमें कोई सवाल होते हैं तो you can ask the things there. And apart from it, very soon we are going to give you the practice test, and in this practice test we are going to have the poems. The section of the poem we completed. The last poem, I have reached your doorsteps. अब मैंने दम से लेकर I had reached your doorsteps तक आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट होगा, इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे और कुछ MCQs होंगे, वो आपको मिल जाएगा, उसकी की भी आपको दी जाएगी बाद में. So you need to work on it too. तब तक के लिए अपने ख्याल रखना है. You need to work on it, you need to go through the things, and you need to have the power of self-belief. Why? It is the power of self-belief who can change you. It is the power of your spirituality that is going to change you. So enjoy the things, have the good days. Good days are waiting for you. So we hope that interaction in the means of video lectures can help you by resolving the things there. We'll stop here and we will start with the next chapter in our very next video. Allah Hafiz.